Good afternoon, everybody. Am I audible? Yeah, you are audible. All right. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to each of you present here today. It is, in fact, truly energizing to see so many bright, passionate young minds gathered here from across the nation. You are the future of this nation, and today you all had the opportunity to be a part of this mission, I would say, that directly touches lives, saves families from financial distress, and strengthens our healthcare system at its roots. Mera Yuva Bharat, My Bharat is an initiative by the Ministry of Youth Affairs and Sports. It is all about creating platforms where young people don't just talk about change, but actually drive it. And one of the most powerful ways you can do this is by participating in this Janaushadhi experiential learning program, which is in collaboration with the Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India. Let's just be clear. The Janaushadhi Kendras are not just medicine stores. They are lifelines. They provide high quality, affordable generic medicines at prices up to 80 to 90% lower than market rates, which is very significant in cutting down the out of the pocket expenditure for millions of Indians. In a country where a large part of the population struggles with healthcare costs, this is nothing short of transformational, I would say. And here's where you, the youth, come in. It is very crucial for young leaders like you to champion this initiative to spread awareness, bust the myths about generic medicines, and help people access what could be the difference between life and death. This program, which we've designed, is not just about volunteering, but it's about becoming a force multiplier for public good. We have planned a very exciting program with verticals and experiential activities for you from working at Janaushadhi Kendras and also, contribute to the public healthcare delivery system. This is your chance to witness the power of public service, engage with grassroots realities, and contribute to the program that has already saved citizens thousands of crores in medical expenses. And yes, on successful completion, you will receive a government recognized certificate that not only acknowledges your service, but also adds value to your career in policy, not just in policy, but also healthcare as well. We are privileged here today to have with us Sri Ravi Dadish, IAS, CEO of PMBI. It's my honor to welcome him. He will be sharing details about the Janaushadhi Experiential Learning Program and how youth can participate and contribute to this important initiative. After that, we will also demonstrate how you can apply for this program, and I encourage all of you to stay engaged and pay active attention throughout this session. I urge all of you to listen keenly and then take ownership for this cause. Now it's my privilege to invite Sri Ravi Dadish sir to address us all. Sir, over to you. Thank you very much. It is certainly a matter of immense pleasure and pride for me to interact with such a large gathering and to share with them the initiative of Honorable Prime Minister about Jan Aushadhi Pariyojana, which we call Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, or in brief, we call it PMBJP. So this is a scheme for providing affordable medicines to its retail outlets, which are spread throughout the country, and with collaboration, particularly with the youth who are having so much of energy, who are leaders of future for our country, and sharing with them that how this scheme is working, giving them an opportunity to have on-hands experience at these Janaushadhi Kendras, which are around 16,000 in number, covering all the states in India, all the UTs. So to begin with, basically, when this idea was conceived and it was declared by Honorable Prime Minister himself in Man Ki Baat that during summer the youth should be means they can be suggested to join as an experiential learning program, and with the help of My Bharat support, it is coming true. We already have shortlisted around 1200 Janaushadhi Kendras covering various states and UTs, where all the
youth champions, I would call them. They would be visiting, they would be having a real-time experience, they would be having a great learning during this 15 days period. So it's a great opportunity. I would like to cover some basic aspects of Janaushadhi Pariyojana for everyone's interest so that they know what actually is on the ground, how the things work in the background, what are the advantages of this scheme, how people are benefiting, how they are saving a lot of money. And as a major public health initiative, because people have to spend a lot of money on is out-of-pocket expenditure on health is maximum on medicines. Rarely one gets admitted to the hospital, so that is one-time expenditure, but on medicines it is a continuous expenditure. And as the age grows, or when everybody has people in their home having some elderly in the family, they need medicines on a regular basis. So if there is a provision, if there is a facility in your neighborhood where you can avail of these affordable medicines, of course, with good quality. So it's a great initiative of Government of India. We are putting in a lot of effort to make it popular. And with this participation of large number of youth, their families, their society and community engagement in this manner, it is certainly going to have far-reaching effects in the health panorama of the country. So without taking much time in the forward, I will go to some of the slides because pictures speak more than the words. You will be able to see some pictures, what is a Janaushadhi Kendra and how it is working. And after that, we can have an interactive session. And towards the end of this presentation, we will also try to highlight means what will be the role of youth, what options will be there, what activities they will be interacting. And I think we can have bilingual coverage in this. So presentation will be in English. Some part I will cover in Hindi as well for everybody's benefit. So we can start the presentation. Please share. Yeah, is it okay? So I hope it is visible. Can somebody confirm it is visible? Yes, Yes, it is. it is visible. Okay, thank you. So as I just mentioned कि जन औषधि परियोजना इसका नाम जो है उसको सामान्य तौर पे हम लोग जन औषधि परियोजना बोलते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव है to make available quality medicines, consumables and surgical items at affordable prices to reduce out-of-pocket expenditure of patients. And it is implemented by a government organization which is known as PMBI, and its full form is Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India. It works under Department of Pharmaceuticals of Government of India. In this slide, you can see a picture of a Janaushadhi Kendra. This is Janaushadhi Kendra at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And this kind of Janaushadhi Kendras you will see in every city or town. We have a very wide network of these Kendras. Next, please. So here you can see how the growth of Janaushadhi Kendras has been in the country in last 11 years. There were only 80 Janaushadhi Kendras in the country. आज उनका नंबर बढ़ के लगभग 16,000 हो चुका है और इस वर्ष के अंत तक हम लोग इसको देश में लगभग 20,000 जनौषधि केंद्र खोलेंगे. ये जो 15 या 16,000 अभी नंबर है, इससे बढ़कर इनका नंबर 20,000 तक हो जाएगा और फाइनल टारगेट हमारा 31 मार्च 2027 तक इसको 25,000 जनौषधि केंद्र पूरे देश में खोलने का एक हमारा उद्देश्य है. साथ में ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जनौषधि की जो एक्सेप्टेंस थी वो बहुत कम थी. 2014-15 में केवल 8 करोड़ रुपए की एक वर्ष में दवाइयां बिकी, जो लेकिन पिछले वर्ष वो संख्या लगभग
उसका 250 गुना बढ़ के 2000 करोड़ से ऊपर ये संख्या हो गई। यानी देश में लगभग 2000 करोड़ रुपए की दवाइयां जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बिकी। इसी प्रकार दवाइयों की संख्या जो थी, केवल 400 प्रकार की दवाइयां मिलती थी, उसको बढ़ा के लगभग 2400 प्रकार की दवाइयां अब मिलती हैं। पिछले 11 साल में ये वृद्धि हुई है। तो ये हम देख सकते हैं कि इन सब दवाइयों की कीमत जो होती है वो बाजार के जो सामान्य ब्रांडेड दवाइयां हम लोग अक्सर लेते हैं या जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उससे 50 से 80% कम होती है। और इन दवाइयों को हम सामान्य तौर पे जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन का भी एक सॉल्ट, हर एक का इनका जो सॉल्ट है दवाइयों का या केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होती है। यानी आप सब लोग जानते हैं कि डोलो बड़ी पॉपुलर मेडिसिन थी कोविड के टाइम में, उसका केमिकल नेम था डोलो 650, जो थी उसका नाम है पैरासीटामोल 650। तो जेनेरिक नेम यानी केमिकल नेम होता है, उसका कंटेंट्स उसके सेम होते हैं, वही क्वालिटी होती है, लेकिन प्राइस उसका काफी कम होता है। नेक्स्ट। ये पूरे देश में सभी की जानकारी, क्योंकि पूरे देश से लोग हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए कि देश में किस प्रकार जनऔषधि केंद्रों का विस्तार है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 जनऔषधि केंद्र हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों लाइक केरला हैज अराउंड 1600, कर्नाटका हैज 1500, तमिलनाडु हैज आल्सो अराउंड 1400, Bihar is catching up fast with around 900 kendras, and in same realm you can see all India there are around 16,000 Janaushadhi kendras covering the entire landscape of India, right from north to south or east to west. This is an operational flow chart. If you can see this, there are 2 channels. In the focus area is central warehouse and some regional warehouse where we procure all the medicines, and from these warehouses we supply the medicines to Jan Aushadhi Kendras through the channel of our distributors, right? And on the outer periphery you can see that people can apply for opening Jan Aushadhi Kendras, or we call it outlets, in an online manner. Online applications are invited. If you see on the left hand side, online applications, some individuals are connected with this online applications. They apply to PMBI through a Jan Aushadhi, through its website, which is Jan Aushadhi. And once they are given approval, then they are connected with our IT systems and are supplied these medicines for sales. सो जन औषधि केंद्र जो चलाते हैं ये सरकारी लोग नहीं चलाते हैं, इनको प्राइवेट एंटरप्रेनर्स चलाते हैं, और वो इसको एक अपना प्रॉफिट का एंटरप्रेनर के रूप में जो काम करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप में कि अपनी सेल्स को मैक्सिमम करना है, उस तरह से इसको चलाते हैं। सरकार की तरफ से उनको ये हाई क्वालिटी मेडिसिन उनको दी जाती हैं और उसको वे दुकान पर एक फिक्स प्राइस पे वहां पर बेचते हैं, जिनका प्राइस जैसा हम पहले बता चुके कि काफी कम होता है। नेक्स्ट। अब इस स्कीम के क्या की सक्सेस फैक्टर्स हैं, ये हमने 6 फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया है, जिनको हम आगे कुछ एरियाज में पिक्टोरियल उससे भी प्रेजेंट करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, एंटरप्रेनर्स के लिए एक इंसेंटिव की स्कीम है इसमें, यानी जो दुकान खोलते हैं उनको इंसेंटिव्स मिलता है, कुछ सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। एडिक्वेट प्रोडक्ट रेंज, काफी वाइड प्रोडक्ट रेंज है। कांस्टेंट कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस सभी चैनल्स से करते हैं हम लोग। सेविंग्स टू द सिटीजंस, वी विल कवर दीज इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जब दवाइयां इतनी सस्ती हैं, बाजार में महंगी होती हैं, यहाँ पर सस्ती मिलती हैं, तो क्या उनकी क्वालिटी उम्दा होती है या उसी स्तर की होती है, उसी स्टैंडर्ड की होती है जो कि एक अच्छी कंपनी की दवाई है? तो जी हाँ, बिल्कुल। ये सभी दवाइयां जो जन औषधि सिस्टम प्रोक्योर करता है, दीज आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स ओनली। यानी जो फैक्ट्रीज या जो कंपनीज इनको बनाती हैं वो एब्सोल्युटली गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करती हैं वो। इसके अलावा जब हम इन दवाइयों को अपने वेयर हाउस में रिसीव करते हैं, वहां पर हम सभी बैचेस को डिफरेंट लेबोरेटरीज में भेज के टेस्ट कराते हैं, और उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार यदि वो पाई जाती हैं तभी हमारे चैनल में वो दवाइयां आगे जा पाएंगी, अदरवाइज उसको उसी स्टेज पे रिटर्न कर दिया जाएगा और डिस्ट्रॉय करवा दिया जाएगा। एंड
उसके अलावा हम एक लोकल लेवल पर जो ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में मिलती हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सिमिलर सेम लैब में भेज के कंपैरेटिव स्टडीज भी कराते हैं कि दवाइयों के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी उसका जो मेन कंपोनेंट है दवाई का, वो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ठीक होते हैं कि नहीं, इसकी भी रेगुलर जांच की जाती है। नेक्स्ट। ये कुछ पिक्चर्स हैं कुछ लेबोरेटरीज की जिनमें ये दवाइयां टेस्ट होती हैं। ये पूरे देश में फैली हुई हैं, कोई बॉम्बे में, कोई पंचकुला में, कोई इंदौर में। एक रैंडम सिस्टम से हम इन दवाइयों को वहां सैंपल्स को भेज के बिक्री होने से पहले इनको हम जांच के लिए वहां भेजते हैं और इनके स्टैंडर्ड क्वालिटी के सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट। ये एक वेयर हाउस की पिक्चर है। देश में हमारे कुछ बड़े वेयर हाउसेज हैं, कुछ रीजनल वेयर हाउसेज हैं, तो ये काफी बड़े साइज के हैं। मैकेनाइज तरीके से इनके अंदर इन दवाइयों को टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी के लेवल्स जो होते हैं उनके अनुसार इनको रखा जाता है और एक हाई क्वालिटी आईटी सिस्टम एसएपी बेस्ड है, उससे इन सब को सप्लाईज का मॉनिटरिंग भी की जाती है। नेक्स्ट। साथ में एक प्रश्न आता है कि ये यूथ के लिए कैसे किस प्रकार से हेल्पफुल है। तो एक जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कोई भी व्यक्ति, एवरीबडी इज एलिजिबल, एनीबडी कैन ओपन ए जन औषधि केंद्र। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति खुद फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी की डिग्री हो। कोई भी व्यक्ति जो कोई व्यापार करना चाहता है और देश सेवा करना चाहता है, मैं ये जोड़ूंगा इसमें जरूर, वो जन औषधि केंद्र खोल सकता है। सरकार की तरफ से उसे जो दवाइयों की कीमत है उस पर 20% मार्जिन मिलता है। उसके अलावा कुछ कैटेगरीज को, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वुमेन, फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हों, इन सभी को 2 लाख रुपए की रिम्बर्समेंट मिलती है फॉर फर्नीचर एंड आईटी इक्विपमेंट के लिए। यानी जन औषधि केंद्र को एस्टेब्लिश करने में जो खर्चा आता है, यदि इन कैटेगरीज के लोग होते हैं उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। या फिर जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं वहां खोलते हैं कोई भी व्यक्ति दुकान, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स या रीजन्स में, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट्स में और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां रहने वाले कोई भी व्यक्ति यदि खोलते हैं उनको 2 लाख रुपए तक का ये गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है और इसी प्रकार से इन कैटेगरीज को मिलता है। इसके साथ में एक बार वापस जाइए। इसके साथ ही एक हम उनको सेल्स बेस्ड इंसेंटिव भी देते हैं जो कि लगभग 20,000 रुपया पर मंथ होता है। तो जब आप लोग दुकान पे जाएंगे वहां ये सब आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से इंसेंटिव मिलता है, कितनी दवाइयां रखनी होती हैं, किस तरह से इंसेंटिव का सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट। ये प्रोडक्ट रेंज की स्लाइड है जो आपको बता रही है कि कितनी प्रकार की दवाइयां हैं, जो कि हम इनके कॉमन नेम से इनको जानते हैं बट इनके ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, हार्ट के डिजीज को कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं, एंटी एलर्जिक हैं, इस प्रकार से, प्लस कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स और ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। और इनका बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 2100 से ज्यादा दवाइयां और 300 से ज्यादा सर्जिकल इक्विपमेंट्स इन दुकानों पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देश के लिए और इसमें मात्र 1 रुपए में एक सैनिटरी पैड मिलता है जन औषधि केंद्रों पे, और जो 10 सैनिटरी पैड का पैक 10 रुपए में खरीद सकता है। इस सस्ती कीमत के 80 करोड़ सैनिटरी पैड इन दुकानों से बेचे जा चुके हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि ब्लॉक लेवल पे या रूरल एरिया में या इवन सिटीज में भी पुअर लोगों को, महिलाओं के लिए यदि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी नैपकिंस, यदि 10 रुपए में हम 10 सैनिटरी पैड दे रहे हैं, एंड दीज आर ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी सैनिटरी पैड, तो इसका भी एक कंपोनेंट आपके ईएलपी प्रोग्राम में रखा गया है। उसको आप डिटेल में जब आप जाएंगे दुकानों पर आप इसको देख सकते हैं और उसके बारे में आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट। कांस्टेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जन औषधि का एक सुगम ऐप है, एक तो जन औषधि की वेबसाइट है और एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है जन औषधि सुगम। इस ऐप से आप ये देख सकते हैं कि आपके लोकेशन के नियर बाय जन औषधि केंद्र कहाँ पर है। आप इसमें दवाइयों का प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसका दवाई का नाम आप इसमें टाइप इन करेंगे तो आपको उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का प्राइस से कंपैरिजन मिलेगा और जन औषधि में किस प्राइस पे यू विल बी एबल टू गेट वो आपको मिलेगा। और एक इसमें हमने नया फीचर जोड़ा है कि कौन सी दुकानों पे कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है वो भी सर्च कर सकते हैं। तो कहीं आउट ऑफ स्टॉक है तो वो मेंशन होगा, या फिर अवेलेबल है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप डाउनलोड जरूर करिएगा जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जाएं,
So it will be an essential tool in your kit to check and understand how this app works, how it helps people. Next. फाइनल जो हमारा सेविंग्स टू द सिटीजन्स एक बहुत ह्यूज नंबर है. पिछले 11 साल में पीपल हैव सेव्ड 38,000 करोड़ रुपीस बाय परचेजिंग जन औषधि मेडिसिन्स एंड एवरी ईयर दिस अमाउंट इज इंक्रीजिंग. और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को इसमें डायरेक्ट खर्चा नहीं करना है. लोग अपना कम पैसा देके अपनी जो बचत कर रहे हैं डायरेक्टली गोज टू देयर पॉकेट. तो इम्पैक्ट जो जन औषधि का है दवाइयां उपलब्ध कराने से फाइनेंशियल वैल्यू में यदि हम उसको करें तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग पिछले 11 साल की 38,000 करोड़ रुपीस आती है. एंड around 1 million people visit Jan Aushadhi Kendras every day. 10 to 12 lakh people in India visit Jan Aushadhi Kendras in all cities and towns. So the objective or the tagline of the scheme जो है Jan Aushadhi सेवा भी रोजगार भी. So you can, while participating in this ELP, this component of seva is a very integral part of your learning program. रोजगार के ऑप्शंस जो हैं वो भी आप इसमें समझ सकते हैं. जब जाएंगे खुद जान सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं. नेक्स्ट. These are some of the examples. आपको यदि कुछ दवाइयों के नाम पता हो, जैसे पेन डी नाम की दवाई काफी लोग यूज करते हैं. पेंटाप्राजोल जो 4th नंबर पे है. नॉर्मल बाजार में उसकी स्ट्रिप 80 या 90 रुपए की आती है, वो यहाँ 12 रुपए में मिलती है, जस्ट 12 रुपीज. इसी प्रकार आपको एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड जो ऑगमेंटिन के नाम से हम दवाई जानते हैं, 6 का पैक है, वो यहाँ 56 रुपीज में मिलता है. इसी प्रकार यू कैन सी हाउ इन एवरी मेडिसिन देयर इज ए सेविंग ऑफ से 90% और 80%. नेक्स्ट. This is just a picture for your information that first international Jan Aushadhi Kendra was opened in Mauritius. So out of India also we are trying to interact with many countries and open Jan Aushadhi Kendra. Our Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar had inaugurated this, and we are in touch with many other countries for providing Jan Aushadhi medicines. Next. Again, some dignitaries have been visiting Jan Aushadhi Kendras. Honorable President of Sri Lanka had visited Delhi-based Jan Aushadhi Kendras recently. Next. Now comes your part. I hope I have been able to give you a glimpse of what Jan Aushadhi Kendras are doing, how they are working, how they are getting medicines, how they are maintaining quality. So when you will visit these Jan Aushadhi Kendras under My Bharat initiative of experiential learning, we feel that these are some of the objectives that to give you an opportunity with practical exposure to operation and business model of the Jan Aushadhi Kendras, how they are managing their affairs. Second is awareness about the healthcare solution and role played by generic medicines. Whether generic medicines are good enough, whether they are not good, these questions in your mind you should be able to answer and tell others also. Third is to understand the supply chain management. When you are supplying medicines to 16,000 Kendras and you have a product list of 2,400 products, you can imagine how many combinations would be happening. Each shop is requiring some medicine every day. How these will be procured at some place, how these will be tested, how these are supplied, how computer systems are connected with each other on each Jan Aushadhi Kendra and distributor and warehouses. So that entire supply chain management, how much time does it take, what factors delay the supply, these all will be, these are also the objectives of this scheme under ELP. Then to disseminate information about Suvidha sanitary pad scheme, which I already mentioned. Also, health checkup in local communities. We generally celebrate 7th March as Jan Aushadhi Divas. We organize health camps during that period. आप लोग भी इस दौरान अपने लोकल उसमें हेल्थ चेकअप को या किस प्रकार से लोकल कम्युनिटीज को अपने जन औषधि केंद्र से लिंक कर सकते हैं उस पीरियड में, ये आपको देखना है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं. और एक नेटवर्क ऑफ यूथ एम्बेसडर्स हम बनाएं कि कभी क्राइसिस टाइम में या अदरवाइज भी एक रेगुलर पीरियड में हाउ दे कैन प्रमोट जेनेरिक मेडिसिन्स. नेक्स्ट. सो द बेनिफिट्स आर क्लियरली स्पेल्ड आउट हियर. To recognize the importance of generic medicines in healthcare, gaining practical exposure on the ground, learning on inventory management, development of communication skills and instill business disciplines and customers handling at the shop, experience of grassroots level of healthcare outreach and understanding the importance of healthcare,
and the basic medical services in case of emergency, how that can be done. So these are the benefits which youth will, we hope with this ELP, they will be able to get. Now the final slide. The roles and responsibilities of volunteers. We expect that during this ELP, they will be assisting in dispensing of the medicines, organizing inventory and maintaining sales records, how the shop is actually working, how they can support elderly patients with medicines delivery as a service, promoting medicines, Suvidha sanitary pads and Jan Aushadhi Kendras as a whole, as a unit for health groups, schools, colleges in the vicinity, enhancing its outreach, the scheme's outreach through word of mouth publicity and social media campaigns, communicating and managing patients, customers, and guiding them about Jan Aushadhi medicines, and gathering feedback. Means we are making tall claims, but you should interact with the customers who are coming, how much they have benefited, how opening of Jan Aushadhi Kendras in their vicinity have saved them money, what change it has caused in their life, how they have been getting these medicines in vicinity by when we have opened these Kendras. So these all you should be able to get the feedback out of this. One more slide is there, I believe. Yes. So the process and structure of ELP, which will be again detailed out by my colleagues who are part of this organizing team. These are just some of the brief, basically that this has a period of, the ELP's period or duration is 1 month, 1st June to 30th June. Last date to apply is 28th May. Age criteria, as mentioned, 16 to 25 years. We have suggested youth to engage 2 to 5 on per shop, because more than that number may not be feasible for the shop, and 15 days actual practical training. There will be daily attendance, that you are sincere and doing something and learning something while being there. Submission of some assignment questionnaire will be online. Feedback assessment and submission of assignment in essay format of 200 words. Means what you learn, you should be able to write, because that is a very essential component, that what you have learned, and then a certificate generation will be done. So I hope with this quite comprehensive program of ELP, which has been structured by keeping youth in view, you would be able to learn more about Jan Aushadhi and its benefits, and will spread the message. Wish you all the best. Thank you. धन्यवाद सर. दिव्या, I like to take from here for 5 minutes. तो सबसे पहले सीयू सर का बहुत बहुत धन्यवाद. दिव्या ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, बट सिंस दिव्या इज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उसने जो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया था, आई लाइक टू जस्ट उसे थोड़ा सा मैं हिंदी में सब लोगों की जानकारी के लिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ. सबसे पहले मैं डायरेक्टर माई भारत युवा मंत्रालय से बोल रहा हूँ. तो जैसे आपको पता है, जो माई भारत पोर्टल है हमारा, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम युवाओं के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं, और ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो युवा का डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करें, और हमारा जो विकसित भारत का सपना है उसकी तरफ हम लोग अप्रोच करें. तो ये माई भारत पोर्टल जो है, ये 22 लैंग्वेज में अवेलेबल है, और माई भारत पोर्टल पे कई टाइप के प्रोग्राम्स, हम लोग कई टाइप की सर्विसेज चलाते हैं, जिसमें एक सर्विस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम. एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभव से सीखें, जिसमें हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, उन्हें अनुभव भी कराते हैं उस चीज का, ताकि वो एक्चुअली उसे सीख सकें, उस चीज को समझ सकें, उसमें इन्वॉल्व हो सकें, और उसे जाके फिर सोसाइटी में लोगों को बता भी सकें. तो इसी कड़ी में इन समर वेकेशन में माननीय प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पे हमने ये जन औषधि के साथ लाइजनिंग करी है, एंड थैंक्स टू जन औषधि डिपार्टमेंट, दे हैव एग्रीड फॉर आवर प्रपोजल, और हमने ये 15 दिन का एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम बनाया है. जन औषधि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मैं अगर बात करूं अपनी या अपने, मैं एक छोटे शहर से हूं, तो मेरे शहर में दवाइयों की दुकान है. दवाइयों की हम सबको जरूरत पड़ती है, हम सबको दवाइयों की एक नीड होती है, दवाई हमारी दोस्त होती है. जितने भी लोग हैं, अगर हम यंग हो चाहे एजेड हो, हम सबको कोई ना कोई दवाई हमेशा जरूरत पड़ती रहती है. तो जन औषधि की दुकानें जब भी खुली थी हमारे सोसाइटी में, हमारे छोटे शहरों में, तो एक मन में भ्रांति थी कि कैसे वही मेडिसिन जो 100 रुपए की आती है, वही 20 रुपए की, 15 रुपए की, क्या उसकी क्वालिटी वही होगी जो एक्चुअल असली मेडिसिन की, जो एक्चुअल मेडिसिन की होती है, जो हम अभी तक खाते आए हैं.
और ये भ्रांति फैलाने में हमारे जो ओल्ड मेडिकल स्टोर्स हैं, मतलब वो लोगों ने भी पूरा साथ दिया। जब मैं अपने पुराने दवाई वाले के पास जाता था तो वो भी ये कहता था, साहब इतनी सस्ती दवाई का क्या, आप ही सोच लो क्या होगा। तो दवाई के साथ साइकोलॉजी भी बहुत जुड़ी होती है। कई बार हम लोग अगर अच्छी साइकोलॉजी से के मेडिसिन लेते हैं तो शायद वो ज्यादा असर करती है। तो इसी असर में, मतलब इसी लाइन में एक किस्सा है छोटा सा, जिसमें मुझे याद है कि हम छोटे थे तो मैं, पापा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पापा डॉक्टर के पास ले गए। वो डॉक्टर पापा के फ्रेंड थे, तो उन्होंने, पापा ने बोला ये बड़ी दिन से परेशान है, इसके दर्द है पेट में। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी पुड़िया बना के, और वो मेडिसिन खाई और शाम तक मुझे कुछ आराम मिलने लगा। तो बाद में मेरे पापा ने बताया, बेटा डॉक्टर साहब ने तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दी थी, सिर्फ चीनी का पाउडर दिया था। तो मेडिसिन हैज गॉट अ साइकोलॉजी अटैच विद इट। अगर हम अपने माइंड में ये चीज रखेंगे कि मेडिसिन अच्छी नहीं है, तो फिर वो शायद असर भी नहीं करेगी। माइट बी वेरी क्रूड इन सेइंग, बट आई लाइक टू थैंक्स जनौषधि एंड सीओ जनौषधि की इतने विस्तृत तरीके से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा प्रोग्राम के बारे में, और बताया कि जनौषधि की कैसे ट्रेसेबिलिटी है, जिस ट्रेसेबिलिटी पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बना हुआ है, कैसे वेयर हाउस है, कितनी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है, सारे टेस्टिंग पैरामीटर्स बने हुए हैं। तो इसी कड़ी में हम थोड़े क्वेश्चंस भी लेना चाहेंगे लोगों से। लोग अपने हाथ रेस कर सकते हैं, हम एक एक करके उन्हें अनम्यूट करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, सीओ साहब के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, 4-5 क्वेश्चन ले पाएंगे। इसी कड़ी में मैं भी सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर, जो मेरे माइंड में जनरली आता है कि ओरिजिनलिटी, हाउ टू वेरीफाई द ओरिजिनलिटी ऑफ मेडिसिन। सर, अगर मैंने जनौषधि केंद्र से कोई मेडिसिन खरीदी है तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर आर लॉट ऑफ डुप्लीकेट्स, तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा जो मेडिसिन मैंने खरीदी है वो ओरिजिनल है? धन्यवाद। So yes, certainly. आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे कम कीमत की बात है और ये डाउट है कि दवाई अच्छी होगी कि नहीं, तो जनऔषधि पूरा एक क्लोज सिस्टम है और इसमें एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि सारी दवाइयां पहले हमारे वेयर हाउसेज में आती हैं। उस वेयर हाउसेज से ये दवाइयां, डिस्ट्रीब्यूटर का एक लिमिटेड नंबर है और वो एक कंप्यूटर सिस्टम, एसएपी बेस एक सिस्टम है। हर बैच का हर दवाई का एक बैच नंबर होता है। तो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को या कौन से दुकानदार को कौन सा बैच नंबर गया, वो डेटा हमारे पास हर समय रेडिली अवेलेबल होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारी इन दवाइयों पे एक डेटा मैट्रिक्स या क्यूआर कोड टाइप का हर स्ट्रिप पे और हर बॉक्स के ऊपर एक, इट इज मैंडेटरी। वो आप नॉर्मल अपने मोबाइल पे एक ऐप के द्वारा तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, यदि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हमारे वेयर हाउसेज में, हम उसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि इस दवाई का कौन सा बैच नंबर है, किस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है। तो पहला कारण तो ये कि ये सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है। इसमें बीच में कोई इस प्रकार से दवाइयों की एंट्री नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई स्टॉकिस्ट कहीं से दुकान को डायरेक्ट सप्लाई कर दे। पहला कारण ये। तो क्लोज लूप होने के कारण से बाहर से दवाइयां एंट्री नहीं होती, तो कोई डुप्लीकेट का हमारे सामने आज तक एक भी इंस्टेंस कहीं पर भी नहीं आया। दूसरा, इन दवाइयों की कीमत काफी कम होती है, तो इसको डुप्लीकेट बनाने में किसी का फायदा नहीं है। जो एक इंसेंटिव होता है कि महंगी दवाइयों को कोई डुप्लीकेट या स्पूरियस बनाएगा, वो फियर यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दवाई की कीमत ही अपने आप में यदि 70-80% कम है तो किसी के लिए लुक्रेटिव बिजनेस नहीं है कि उसको डुप्लीकेट बना के उस रेट में मार्केट में दे और कुछ प्रॉफिट कमाए। वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। और तीसरा, मैंने जैसा बताया कि हम अभी उसको डेटा मैट्रिक्स बोलते हैं, जो उस पर सिंबल हर एक, आप जब ये लोग जाएंगे शॉप्स पे देख पाएंगे, आप भी कभी जाएं तो देख सकते हैं। वो उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है। इंडिविजुअल स्ट्रिप पे भी होता है और जो बाहर का कार्टन या पेपर बॉक्स होता है उसके ऊपर भी होता है। इसको भी हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं आगे, कि इसको पूरा एक ब्लॉकचेन बेस्ड इसका मॉनिटरिंग करें। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जनऔषधि की दवाइयों में कोई भी किसी प्रकार की स्पूरियस या आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पूरी तरह से ये दवाइयां क्लोज लूप सिस्टम में काम करती है। आप म्यूटेड है, काइंडली अनम्यूट। स्टिल म्यूटेड। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस। तो सर, नेक्स्ट हम 2-3 क्वेश्चन लेना चाहेंगे। तो मॉडरेटर, इफ यू कैन अनम्यूट मिस्टर आलोक कुमारम। Yes.
आलोक जी अपना प्रश्न पूछ, अशोक जी अपना प्रश्न पूछें प्लीज। कुछ पूछना। अशोक जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो रिंकी जी को ले सकते हैं। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनम्यूटेड हैं। मॉडरेटर प्लीज टेक समबडी एल्स, आई थिंक किसी और को ले लीजिए, आवाज नहीं आ पाई। दीपक कुमार। दीपक कुमार। 250 ये हाँ, दूसरा दे दीजिए। 200 दीपक कुमार। You can ask the question. अरे लेता नहीं कोई। कोई क्वेश्चन नहीं। मॉडरेटर और को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। लोकेश एनवी। Lokesh Envy, you can ask your question. सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ नीचे कर दें, और जिसको किसी को प्रश्न पूछना वही अपना हाथ ऊपर करे प्लीज, वरना कंफ्यूजन होता है। बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर दिया। मॉडरेटर अगर एक बार में आप सबके हाथ नीचे कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। Dr. Arpita Jain. डॉक्टर अर्पिता जैन को प्लीज अनम्यूट करिए। Good evening. Good evening, everyone. Sir, I would like to ask for the volunteers to be selected for the Jan Aushadhi ELP. There is any specific requirement regarding the subject? नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, एंड अगर मतलब एवरीबडी इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इनटू दिस। Thank you, Arpita. प्रश्न ले सकते। Dr. Altaf Ahmad. मैम थैंक यू। मैं कश्मीर से हूँ सर, अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो बड़ा जाहिर सी बात है कि स्कीम का नाम चेंज हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स भी होंगी। तो अमेंडमेंट्स के बारे में अभी चूंकि नई नई स्कीम है और इसमें अमेंडमेंट्स हैं, एक तो सर उसके बारे में हमें मोटा मोटा बता दीजिए। और बाकी जो है ना रजिस्ट्रेशन में सर जैसे हमारे ट्राइबल SC ST OBC के लिए कोई अलग से प्रोविजन है क्या इसमें? आप रजिस्ट्रेशन ऑन ELP की बात कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन जन औषधि केंद्र के लिए बात कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ऐसा रजिस्ट्रेशन में अलग से हमारा कोई डिमार्केशन नहीं है। आप सीधे माई भारत पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अपने अपने जिले में, आपके जिले के लिए उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, उसमें जो बेसिक डिटेल है फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ले सकते हैं। Dr. Rinshin. Very good evening, everyone. I am from SNM Hospital ले। मैम एक्चुअली जो PPT आपने दिखाया था उसमें आपने बोला था कि थ्रू आउट हिमालयन रीजन एंड मैम आपकी आवाज No, नहीं you आ are रही। muted. Hello, Yes. am I audible? Yes. हाँ, you are. आप फिर से पूछें प्रश्न, फिर से पूछें। केवल मैम ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने PPT में दिखाया था कि थ्रू आउट आपने बोला था कि हिमालयन रीजन और ST SC कैटेगरी के लोगों को आपने बोला था कि कुछ इंसेंटिव के बारे में बताया था सर जी PPT में। कैन यू प्लीज रिपीट द सेम?
या हाँ, मैं अदरवाइज बता देता हूँ इफ इट इज पॉसिबल Yes, आप yes, पीपीटी wait. शेयर कर सकते हैं क्या सर? वेट ये सब इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर उपलब्ध है. एनी पर्सन who is either a woman, SC, ST or Divyang or an ex-serviceman, they all get 2 lakh rupees reimbursement for infrastructure of the shop for purchasing refrigerator, computer and furniture for the shop. So this is a support to establish Janaushadhi Kendra. Besides this, there are some Okay. areas like Himalayan districts, so your Ladakh will come in that. Means all Yes, sir. states which have Himalayas, so that is one category. Aspirational districts are also another category, and island districts. So these are the areas. If any person out of these areas applies for opening a Janaushadhi Kendra on Janaushadhi website, and once he establishes, he submits the bill, he gets benefit of rupees 2 lakh as reimbursement. So for this detail, you Okay, can sir. go Thank to you. our website and check it. Okay. Okay, sir. एक Sir, आखिरी in लेंगे case, sir, सर, एक Thank you, Dr. हाँ जी. sir, in case अगर suppose we have one district hospital here, there's only one Kendra is नहीं. so the same we apply to the government also. So for government hospitals, this incentive may not be applicable in that way because the space is given by the government, right? Government, So okay, sir. that will be facilitated by your government, by your UT administration or by your state government, wherever it is. बट कोई इंडिविजुअल बाहर खोलता है उसको ये सपोर्ट मिलेगा. और आप एक बार जनौषधि की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, उस पर आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये सब, कि उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां भी बात करके आप और सवाल पूछ सकते हैं. Sir, but in the last- pharmacist, so मैम आई रिक्वेस्ट यू टू चेक द वेबसाइट. हम एक लास्ट प्रश्न और लेना चाहेंगे और उसके बाद हम लोग को अपना यहाँ पे डेमो भी देना है इसके बारे में, पोर्टल और इस ELP पे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि काफी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ELP पे कैसे पार्टिसिपेट करना है. तो इसके बाद हम एक 10 मिनट का डेमो देंगे ऑनलाइन पोर्टल पे कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ELP में. तो एक लास्ट प्रश्न और लेना चाहेंगे. प्रोफेसर अश्वनी कुमार को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बताएं. Sir, this is Professor Ashwini from BGC College, Batala. Actually, my question is कि जैसे ये जन औषधि केंद्र लोग खोलते हैं तो उनके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो साइंस बैकग्राउंड चाहिए या कोई भी चाहिए. और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसे हैं, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर दैट, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे हैं जिसके साल्ट्स जो हैं वो जन औषधि में नहीं मिलती हैं. तो कोई ऐसा प्रोविजन भी है कि हम वो साल्ट ऐड करें और गवर्नमेंट वो साल्ट प्रोवाइड करे? थैंक यू सर. हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जन औषधि केंद्र के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति खोल सकता है. लेकिन जब शॉप एस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए एक फार्मासिस्ट की जरूरत है लॉ में. तो डी फार्मा या बी फार्मा जो होगा, कोई व्यक्ति वो दुकान पे एज ए एम्प्लॉय काम कर सकता है. तो उसके बेस पे ड्रग लाइसेंस स्टेट की अथॉरिटीज देती हैं. दूसरा, आपने कहा कि कुछ दवाइयां या सॉल्ट नहीं मिलते हैं. जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देश में लगभग 60,000 प्रकार की दवाइयां और सॉल्ट्स हैं. तो कोई लिमिटेड नंबर में ही हर शॉप पे चीजें मिलती हैं. हमारी रेंज वैसे ही बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसमें, और इसको हम हर साल इसमें इंक्रीज करते रहते हैं. हर साल इसमें एक स्टडी के बाद में कि जो पॉपुलर दवाइयां जिनकी जरूरत होती है उसको जन औषधि नेटवर्क में हम लाते हैं. आज जैसा हमने शुरू में पीपीटी में भी दिखाया था, पहले 400 के करीब दवाइयां थी जो बढ़ के अब 2400 हो गई हैं. तो ज्यादातर जरूरत की दवाइयां सभी इन जन औषधि केंद्रों पे मिलती हैं. और जैसा कि ये एंटरप्रेन्योर ड्रिवन मॉडल है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर दुकानदार कम दवाइयां रखता हो, लेकिन आप उसको 2-3-4 जगह चेक कर सकते हैं, तो आपको आपकी जरूरत की दवाइयां मिल जाएंगी, या वो जन औषधि केंद्र को आप बताएंगे वो मंगवा भी सकता है जो दवाइयां हमारे यदि प्रोडक्ट बास्केट का पार्ट है. Actually, my question is there any online portal where we put the name of the salt and the request is goes to the department for purchasing these medicines? No, absolutely no. There is no online supply of medicines through Jan Aushadhi. Okay, thank you sir, thank you so much. आगे प्रश्न नहीं ले पाएंगे सर.
समय का अभाव के कारण we have got further demo of 15 minutes. So I'll request Mr. Rohit, Assistant Director My Bharat, to offer a vote of thanks to CEO Jan Aushadhi. So thank you so much CEO sir and their team. सर काफी सपोर्टिव ये सेशन रहा है और आई थिंक काफी क्वेरीज जो थी वो भी हमने कुछ रिजोल्व कर पाए हैं, पर टाइम की हमारे पास भी लिमिट है तो शायद हम कुछ क्वेश्चन नहीं ले पाए. सो अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द PMBI टीम फॉर मेकिंग दिस हैपन. तो काफी अच्छा सेशन रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. उसके बाद हमारे कुछ यूथ्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे हमने इस ELP में बच्चों को अप्लाई करना है. तो हमने एक आपके लिए एक डेमो रखा है कि कैसे एक यूथ इसमें अप्लाई कर सकता है. तो हमारे साथ जुनेद जी जुड़े हुए हैं. जुनेद जी आप एक बार पूरी ELP की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा दीजिए. ओवर टू जुनेद जी. थैंक यू रोहित सर. So I hope my screen is visible to everyone. It's visible, Junaid. Thank you, Rohit. So गुड आफ्टरनून एवरीवन. जितने भी बच्चे यूथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सभी को जिनको जन औषधि केंद्र की एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम पे अप्लाई करना है, अपना इंटरेस्ट शो करना है, वो सभी लोग mybharat.gov.in पे विजिट कर सकते हैं. mybharat.gov.in विजिट करने के बाद आपके पास ELP को चेकआउट करने के वेरियस ऑप्शंस हैं. तो इनिशियली जब आप माय भारत की वेबसाइट को विजिट करेंगे वहाँ पे आपको साइन इन और रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन आपके राइट हैंड साइड पे दिखेंगे. अगर किसी बच्चे ने अभी तक माय भारत पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं करा है तो रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज करके माय भारत पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर कोई हमारे यूथ हैं जिन्होंने पहले से माय भारत पोर्टल पे रजिस्टर करा हुआ है देन दे कैन सिंपली साइन इन एंड देन they can explore the experiential learning opportunities available on the portal. अब माय भारत पोर्टल के ऊपर वहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला सेगमेंट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास वेरियस फिल्टर्स अवेलेबल हैं, प्लस एक हमारी स्पेशल टैगिंग हमने जन औषधि केंद्र के लिए दी हुई है जो आपको जन औषधि के मेगा इवेंट के ऊपर रिडायरेक्ट करती है. तो अगर हम जन औषधि की टैगिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी पूरे पैन इंडिया से जो ELPs पब्लिश हुए हैं that is around 1164 ELPs जो है वो सारे हमें एक बार में एक पेज के अंदर दिख जाते हैं. अदरवाइज अगर हम नॉर्मली ELP के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी हम हमारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फंक्शनल कैटेगरी या फिर MBO नेम के अकॉर्डिंग हमारी ELP को सर्च आउट कर सकते हैं. तो इन ऑर्डर टू सर्च हमारी ELP वी कैन सिंपली क्लिक ऑन फंक्शनल कैटेगरी और यहाँ पे हम जन औषधि अगर टाइप करेंगे तो हम फंक्शनल कैटेगरी को जन औषधि सेलेक्ट करके या फिर MBO नेम में माय भारत ऑर्गेनाइजेशन नेम में जन औषधि सेलेक्ट करके हम हमारी जन औषधि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम को सर्च आउट कर सकते हैं माय भारत पोर्टल के ऊपर. अब माय भारत पोर्टल के ऊपर जब हम हमारे फंक्शनल कैटेगरी और MBO का फिल्टर आउट करेंगे तो हमारी अपकमिंग में हमें हमारी वेरियस ELPs विजिबल हो जाएंगी जो माय भारत पोर्टल पर अभी तक पब्लिश हुई है. उसके अलावा अगर मुझे किसी बच्चे को अपनी ELP को सर्च आउट करना है तो वो अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का फिल्टर लगा के भी ELPs को सर्च आउट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हरियाणा की किसी ELPs को चेकआउट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे स्टेट में हरियाणा का फिल्टर लगा के ELPs को देख सकता हूं कि कौन कौन सी ELPs माय भारत पोर्टल पर और कौन कौन से रीजन से अवेलेबल है. अब एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोगों ने ELP के अंदर एड्रेस भी मेंशन करा हुआ है जन औषधि केंद्र का कि स्पेसिफिकली क्या होता है. कई बार हमारे पास एक ही डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल जन औषधि केंद्र होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लेता हूँ तो अब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर यहाँ पे मल्टीपल जो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम अवेलेबल है, जब मैं हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे क्लिक करूंगा तो उस वहाँ का केंद्र कोड, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्लस उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हमें हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर अवेलेबल है. प्लस हमारा जो केंद्र कोड है वो हमें एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर अवेलेबल है. तो हम वहां से हमारा केंद्र कोड चेकआउट करके उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट शो कर सकते हैं. अब किसी भी ELP पे अप्लाई करने के लिए बच्चों को सिंपली अपनी सबसे पहले ELP जहां पर वो अप्लाई करना है उसको फिल्टर आउट करना है. उसकी सारी बेसिक डिटेल्स चेकआउट करने के बाद
बच्चा अपने जो ELP के ऊपर अप्लाई बटन है, उस अप्लाई बटन के थ्रू ELP के ऊपर अप्लाई कर सकता है। अब जब जैसे ही कोई भी बच्चा, कोई भी वॉलेंटियर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेगा, तो अगर वो बच्चा पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको डायरेक्टली अप्लाई वाले बटन से उसके रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे वो अपना आधार वैलिडेट करके ELP के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई यूथ जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे लेके आज पोर्टल आ जाता है, जहाँ पे बच्चा अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और मैं अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं, आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आपको मिल जाता है। उस OTP के थ्रू आप अपना इनिशियल स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं और वहां पे आगे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आप लोगों का जो माय भारत प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, जिस के थ्रू हम लोग रजिस्टर करके हमारी जो ELP's एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम जन औषधि केंद्र से रिलेटेड अवेलेबल है माय भारत पोर्टल पे, उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। रोहित सर, बता दो वीडियो। तो थैंक यू जुनेद। तो इसके लिए हम एक वीडियो भी बना रहे हैं, वो थोड़ी देर में हम आप सभी जगह भिजवा देंगे। और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इशू आ रहा है तो आप प्लीज एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में किसी को भी ELP रजिस्ट्रेशन में या फॉर दैट मैटर माय भारत पोर्टल के ऊपर एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम ले पाएंगे और बाकी हम एक वीडियो बना के YouTube पे भिजवाएंगे और इस पोर्टल पे भी अवेलेबल करा देंगे कि जन औषधि केंद्र में अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा वीडियो के साथ हिंदी इंग्लिश में हम लोग अपलोड करा देंगे। आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। राजशेखर जी, आपका कोई डाउट है? हाँ सर, नमस्ते सर। मैं नमस्ते। कर्नाटक से बोल रहा हूँ, धारवाड़ से सर। जी जी बताइए। ये अंडर 19 डाले तो नहीं ले रहे सर, हमारे बच्चे PU के हैं सर। जो अंडर 19 बोले तो नहीं लेता सर, उसको क्या करना सर? नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं आ रहा होगा। अंडर 17 रहते सर हमारे बच्चे, तो नहीं ले रहा है सर वो। इस ELP में जो हमारी एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 29 साल तक के मतलब फ्रॉम 18 ईयर्स टिल 29 ईयर्स, यही हमने इसमें लिमिट रखी है बिकॉज द यूथ शुड बी एन एडल्ट टू पार्टिसिपेट इन द मेडिसिन ELP। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजशेखर जी। फातिमा जी, आपका एक डाउट है? यस सर। जी मैम प्लीज। सर हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से बोल रहे सर। सो एक वॉलेंटियर्स कितने भी वो अप्लाई कर सकते? ELP बहुत सारे अभी भी चल रहा है ना, कभी कभी हो सकता है कि एक ही वॉलेंटियर्स 2 या 3 ELP अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये गांव के बच्चे के लिए है, ट्राइबल फैमिली भी इधर भी है बहुत सारे, जिन लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसी हिसाब से हम देख रहे हैं। तो कितने भी ELP वो लोग कर सकते हैं? अगर ELP करने के बाद वो लोग की भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो जन औषधि केंद्रों के लिए वो की अप्लाई कर सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक मैम। देखिए मैम, बच्चा सिर्फ एक ही ELP में अप्लाई कर सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है 6 या 7 जन औषधि केंद्र में इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो, तो हमने वहां पर एक एड्रेस की फंक्शनैलिटी डाली हुई है मैम, ताकि बच्चा अपनी जो नियर बाय जो भी उनका नजदीकी जन औषधि केंद्र है वहां पे जाकर इस एक्टिविटी को कर सकता है। तो पर एक ही बच्चा एक ही ELP में अप्लाई करेगा मैम, क्योंकि ये फिजिकल प्रोग्राम भी होता है, तो एक बच्चा एक साथ कई जगह नहीं जा सकता, तो एक बच्चा एक ही ELP में अप्लाई करेगा।
सर वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के आसपास में कोई ईएलपी के मैम आप पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पर स्टेट वेस्ट बंगाल और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भी कोलकाता डाल के देख सकते हैं मैम। आप प्लीज पोर्टल पे एक बार विजिट करिए। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट संजय जी, आपका कोई डाउट है? हाँ सर। जी सर बताइए। सर जी सर आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। सर नमस्कार। जी नमस्ते। मैं पुण्यश्लोक आइलेज होकर सोलापुर यूनिवर्सिटी सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। जी सर। दिक्कत ये है कि मैं एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ सर, पंढरपुर विभागीय समन्वयक। तो मेरे कॉलेज ऐसे है कि मेरा ही उदाहरण कि मेरे बच्चे जो है माय भारत पोर्टल जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो मेरे लॉगिन में दिखाई नहीं दे रहे। ये बात मैंने अजय सिंधे साहब से भी बात की थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा था। अब तक वो सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो चुका। जी सर, हम एक बार इसमें आपका चेक कर लेंगे सोलापुर में। बाकी सर अभी जो हमारा इस टाइम जो हमने ये सेशन रखा है सर, वो जन औषधि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में रखा है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज उसके बारे में पूछ लीजिए। थैंक यू संजय जी। नुपुर रॉय जी, मैम आपका कोई क्वेरी हो? हाँ सर, एक्चुअली मतलब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रही थी मैं, कोई मीटिंग मिस नहीं करती, तो थोड़ा ज्वाइनिंग में लेट हो गया। तो एक्चुअली ईएलपी साइबर सिक्योरिटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, उसमें अप्लाई चल रहा है। तो सर ये क्या मतलब हमें ईएलपी क्रिएट करना है या ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसमें स्टूडेंट अप्लाई करेंगे? साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट ईएलपी है, ये डिफरेंट ईएलपी है। दोनों का इसेंस, दोनों का थिंकिंग, दोनों का ही वर्किंग डिफरेंट है। ये ईएलपी जन औषधि केंद्र द्वारा क्रिएट करा गया है जन औषधि की इंफॉर्मेशन के लिए यूथ को, और साइबर सिक्योरिटी जो है वो नॉलेज इंस्टीट्यूट्स ने क्रिएट करा है बच्चों को साइबर लॉस की इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोनों अलग अलग ईएलपी है मैम। बिल्कुल। थैंक यू नुपुर मैम। और डॉक्टर निशांत दुबे सर, आपकी कोई क्वेरी है? डॉक्टर निशांत जी सर बताइए सर। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, यूनिट बहुत अच्छी है, टीम बढ़िया है, ठीक है, परियोजनाएं बहुत सर अच्छी आपकी है। आवाज बहुत धीरे आ रही है सर, अब एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? सर मैं ये बोल रहा था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, परियोजनाएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर मेडिसिन हम लोगों को टाइम पर नहीं मिलेगी तो फिर कैसे काम चल पाएगा? और कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास टाइमली प्रोडक्ट या तो अवेलेबल नहीं होते हैं, ऊपर से बाउंडेशन है उनके यहाँ इतने टाइम के। आपकी आवाज हमको नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है। आप चैट बॉक्स में अपना कुछ प्रश्न लिख दें ताकि हम उसका जवाब दे सके। कोई और दूसरा प्रश्न लेते हैं प्लीज। देखिए हम प्रीतम मुखर्जी। हेलो सर, हम वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या आज आ रही है? जी बताइए सर। हाँ, जो बच्चे लोग यहाँ पे ईएलपी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 ईएलपी क्रिएट किया है एनवाई के हुगली ने। तो आने जाने का क्या बच्चे लोग का कोई फेयर मिलेगा ना? उसका अपने ही खर्च में वो ईएलपी को 15 दिन जाना पड़ेगा? ये हमारा जानकारी। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आने जाने की किराए की कोई हम इसमें व्यवस्था नहीं है। ये ईएलपी सिर्फ उनकी नॉलेज गेनिंग के लिए है, इसलिए हमने ये हर डिस्ट्रिक्ट में और उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी केंद्र है, जो भी नियरेस्ट केंद्र है, उस पर भी क्रिएट करा है ताकि आप केंद्र के एड्रेस को देखें, अपने नजीकतम जो नियरेस्ट केंद्र है उसमें आप पार्टिसिपेट करें ताकि आपको ज्यादा आने जाने में डिफिकल्टी ना हो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रीतम जी। आई थिंक हमें यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा समय के अभाव के कारण। वी हैव टू फिनिश दिस एंड नुपुर मैम ने कुछ चैट बॉक्स के क्वेश्चन ले लेते हैं
चैट बॉक्स खोल लीजिए। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स अ डे, तो हमारी थिंकिंग ये है कि 5 से 6 घंटे पर डे का रहेगा, लेकिन ये काफी फ्लेक्सिबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास अगर ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, टाइम नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, वो फिर भी कर सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर वो एक दिन नहीं आ पाता है तो एक दिन एक्सटेंड कर देगा। ये जन औषधि केंद्र और यूथ के बीच की अंडरस्टैंडिंग पे हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव लोगों को सिखाना है। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि बिल्कुल अटेंडेंस वहां पे टाइम पे आना, टाइम पे जाना, वहां बैठे रहना। हमारा मेन मोटिव सोसाइटी को सिखाना है, यूथ को सिखाना है, ताकि वो आगे जाके अपना डेवलपमेंट और सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके। और क्वेश्चंस लेंगे ऊपर। How volunteer can be selected in one center is what is the criteria। आगे ऊपर जाइए, बात हो चुकी है, ऊपर जाइए। एक क्वेश्चन है कि अगर नूपर मैम का, यस मैम, आपके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ELP में। एक इसमें हमारे पास क्वेश्चन आया है कि सभी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। देखिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो भी यूथ इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेना चाहता है वही इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करे। एक किसी ने पूछा है कि क्या यूनिवर्सिटी को डाटा दिखेगा। देखिए, जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है वो जन औषधि केंद्र के द्वारा कराया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी में जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। उनके डाटा के लिए ऐसी फंक्शनैलिटी अभी नहीं है, वो सिर्फ जन औषधि केंद्र के पास ही रहेगा। देखिए, जो भी ELP क्रिएट होते हैं, जो ELP क्रिएटर होता है, जो CLP को चला रहा होता है, उसी को उसकी डाटा की एडमिन राइट्स होते हैं। तो क्योंकि ये ELP जनौषधि केंद्र द्वारा कंडक्ट करी जा रही है, द एडमिन राइट्स लाइज विद जनौषधि एंड द डाटा विल बी अवेलेबल विद जनौषधि ओनली। एक इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है, लेकिन बच्चा जाता है तो ये वो फिजिकल प्रोग्राम ही रहता है, तो बच्चे को ऑफलाइन ही ये प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। हमारा ईमेल और हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, अगर किसी के पास और क्वेश्चन है तो उस पर भी दे सकता है, एंड वील बी हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस ऑन ईमेल आल्सो। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित से कि हमें समाप्त करना पड़ेगा प्रोग्राम को, तो सभी को धन्यवाद देते हुए प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। जी जी, थैंक यू आप सभी का इसमें भाग लेने के लिए। तो ये काफी ज्यादा ही इंटरेक्टिव सेशन रहा है, हमें भी काफी अच्छे फीडबैक मिले हैं। हमने भी चैट बॉक्स में देखा है कि थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीज के भी काफी सारे मैसेजेस आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जन औषधि टीम को भी जो इसमें हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।